तो शक्ति ना तो बल से होगा मेरे आत्मा से, ना तो शक्ति ना तो बल से, यह यहोवा ने कहा। ये पर्वत तो हटेगा, ये पर्वत तो हटेगा, ये पर्वत तो हटेगा, यहोवा ने कहा। It's not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. These mountains shall be removed, these mountains shall be removed, these mountains shall be removed by my Spirit, saith the Lord. These mountains shall be removed, these mountains shall be removed, these mountains shall be removed by my Spirit, saith the Lord. ये पर्वत तो हटेगा, ये पर्वत तो हटेगा, ये पर्वत तो हटेगा, ये यहोवा ने कहा, ये यहोवा ने कहा। होगा मेरे आत्मा से, होगा मेरे आत्मा से। Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Just want to welcome you all in Jesus name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं। महान परमेश्वर है और आज जिसे पेंटिकॉस्ट संडे है। Amen. कितने लोग जानते हैं पेंटिकॉस्ट संडे क्या है? It is actually the 50th day after Easter. Jewish calendar में जो उनके celebration of harvest, it is 7 weeks plus 1 day, which is 50 days. 49 plus 1, 50 days. और उसी दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया था हर एक के लिए, और just selected people के लिए था, लेकिन उस समय हर एक के लिए आया। और आज हम धन्यवाद देते हैं, वो आज हमारे बीच में है, हमारे साथ है। आमेन। हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। और उम्मीद है कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेगा जैसे हमारे साथ जुड़े हैं। आमेन। क्यों नहीं प्रार्थना करें इसमें, और माँ करके स्टेफनी हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। Dear Heavenly Father, we come before you today, God Almighty, just to praise and worship you, God Almighty, for all you've done in our lives and for all that you are doing right now, God Almighty. Lord, I pray that as we praise and worship you, God Almighty, I pray for a special touch today, God Almighty. Those who are in pain, those who are having issues, God Almighty, I pray that while we sing and worship you, God Almighty, that you touch them, Father, and you resolve whatever the issue is, God Almighty. Lord, those who are here and watching, God Almighty, I pray that you can give us a special touch like you did on the day of Pentecost, God Almighty. In the name of Jesus Christ, I pray, amen. आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता।
आत्मा मंडराता है, पवित्र आत्मा मंडराता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। वो हमें हर समय मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। आसमानी खुशी नल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नल भर दे मैनू, गीत नव दिल विच पा, गीत नव दिल विच पा।
आसमानी खुशी नल भर दे मेरी, अपने पवित्र आत्मा से तू भर दे प्रभु। यही चाहते हैं। आह प्रभु, उतर आ प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु कि तू हमारे बीच में है। हालेलुया। We worship you, God Almighty. We worship you, Lord. We thank you, Father, for your love and your mercy in our lives, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उजले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु कि तू हमारे बीच में है आज। Hallelujah, hallelujah. Father, I pray that you touch every heart this afternoon, oh God Almighty, as we worship you, Lord. Touch them, oh God Almighty, in a very special way, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. बहने दे उस हवा को, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस
पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को प्रभु। तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग पे चला। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर और अपने मार्ग पर हमें चला प्रभु। प्रार्थना करते हर एक के लिए। हालेलुया। Let this be your prayer this afternoon. Let this be your prayer this afternoon, that the Lord leads you and guides you in His paths of righteousness. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. धन्यवाद देते प्रभु। Hallelujah. We give you all the glory and honor in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 You may be seated. Thank you. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। आमीन। आज जिसे पेंटिकॉस्ट संडे है, हम लोग याद करें उस दिन के जब पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया था। आमीन। एंड एक्स के किताब में कहता है he came, not it but he, that is the spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, he came like a mighty rushing wind, like एक हवा के झोंका, एक तूफान की तरह वो आया और पूरा जो शहर था वहाँ पर सब कोई जान गया कुछ हुआ वहाँ पर। And they saw people, उन लोगों के सर के ऊपर there was like a flame, not like a flame, there was a flame on top of every person that was in that upper room, जो एक टाइम में almost 10 days से वो प्रार्थना कर रहे थे। They waited upon the Lord, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या किया था कि वो जा जेरूशलेम में इंतजार करो। Sometimes we are not ready to wait upon the Lord. We try to do things our way. But when we wait upon the Lord, He is going to bless us. Amen. इस समय हम वचन सुनेंगे और आज वचन लगाएगा भाई Ezekiel. So let's welcome him. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता है जिसे हम लोग का मौका निकाली से, ताकि आज हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार इकट्ठा हो सकता है। और हम लोग जिसे जनता है आज पेंटिकॉस्ट संडे है, एक बहुत इम्पोर्टेंट संडे है हम लोग के लिए, बिकॉज आज हम लोग याद करता है उस दिन के जो दिन पवित्र आत्मा ऊपर से उतर के आइसरा हम लोग के बीच में। और उस समय हम लोग जब देखता रहा तो उसे 50 डेज पहले जीसस अपने आप के बलिदान कर रहा हम लोग के पाप के लिए। और जब उसके बाद हम लोग देखता है, अगर हम लोग के पास धर्मशास्त्र हम लोग देखेगा बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 3 से लेके 8 ले, और वर्स 3 में यहाँ पर बतावे बोले जन जीसस जी उठा रहा। उसके बाद जो 40 डेज ले वो अपन लोगों के बीच में आता रहा, वो लोग के बीच में आता रहा, वो लोग के सिखलाता रहा। तो जन परमेश्वर जी उठा रहा, उसके काम वहाँ पर खलास नहीं बेच रहा। He came to die for our sins. He came to give his life so that we are victorious. लेकिन उसके काम हम लोग देखता है जीसस के it didn't end there. उसके बाद वो गए हेल से जन हम लोग के ज़िंदगी के चाबी है शैतान के हाथ से छीन के लेकर इस, ताकि जन हम लोग के ज़िंदगी है, हम लोग के ज़िंदगी अब परमेश्वर के हाथ में रहे और ना कि शैतान के हाथ में रहे। और फिर 40 डेज वो अपन लोगों के बीच में आता रहा, बिकॉज जीसस जानत रहा कि he had done what he was supposed to do. He gave his life. He was resurrected. हम लोग के विजेता दे दिस
लेकिन वो जानत रहा, जीसस जानत रहा एक चीज कि जब वो हम लोग के छोड़ के चल दी, देन हम लोग जो इंसान लोग ने हम लोग नहीं जानेगा कि हम लोग के कैसे रह के है, कैसे जिए के है। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखता है जीसस के मरे से कुछ दिन पहले के जन कहानी है, तो जन टाइम व्हेन जीसस वाज बिट्रेड, तो जन हुआ के सोल्जर्स लोग रहा, वो लोग आइस जीसस के कैप्चा करे। और वो स्टोरी में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएगा। जन जूडास आइस्करियोट लेके आए इसरा सोल्जर्स लोग के, और उन लोग के बताए कि उसमें से जीसस कौन है। और जैसे उसमें से सोल्जर्स लोग जाए के जीसस के कैप्चा करिस, Peter, who was supposed to be the rock, who was supposed to be the foundation of the churches, हाली से तलवार निकाल के same time एक सोल्जर के कान काट दिस, because he was thinking वो जो सोच रहा उसके, वो एक इंसान के तरह रहा. He didn't know what the bigger picture of the kingdom of heaven was all about. जन टाइम वो किंगडम ऑफ हेवन के बारे, जन टाइम वो किंगडम के बारे में सोचत रहा, जन टाइम वो विजेता के बारे में सोचत रहा, he was still in the mindset कि जन फिजिकल विक्ट्री है, जन फिजिकल लाइफ है, उसमें वो लोग के विजेता मिली, उन लोग में वो लोग के सल्वेशन मिली। लेकिन वो स्पिरिचुअल बहुत अंडरस्टैंड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई जैसे उसके आइज कैप्चर करे, अपन तलवार निकाल के same time soldier के कान काट दिस, but Jesus knew the bigger picture. तो Jesus कौन सी करे उसके कान फिर से ले जाए के उसके कान जोड़ दिस, because he wasn't there to defeat those soldiers. What he was there was to win the kingdom of heaven spiritually. Or his battle was not with the humans. His battle was against Satan. He wanted he wanted us to have salvation. He wanted us to have victory. तो हम लोग फिर उसके आगे जाता है, जन उसके when he was resurrected, he knew कि जब वो ऊपर चल दी, when he जब फिर से हेवन चल दी, he knew कि जन इंसान लोग ने हम लोग है, हम लोग नहीं जानेगा कि कैसे हम लोग के जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। So he said, when I go, I will send you a comforter. हम होली स्पिरिट तुम लोग के भेज के जाएगा। I will send you a helper, कि हम लोग के कोई मदद करे सके, हम लोग के गाइड करे सके, हम लोग के कोई दिखाए सके कि सही रास्ता कौन सी है। बट उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा जाता है, 40 days वो आए कि अपन जन डिसाइपल्स रहा और आधा फॉलोअर्स रहा उस समय पे, उन लोग के हर वक्त सिखात रहा कि किंगडम ऑफ हेवन कौन सी है, व्हाट टू एक्सपेक्ट और कैसे कैसे रही। लेकिन एक सवालात हम लोग जन वेस चैप्टर 1 में देखता है, एक्स चैप्टर 1 में देखता है, उससे कुछ डिसाइपल लोग उससे एक सवालात करीस कि जन किंगडम ऑफ हेवन है कि कब तुम लौट के आएगा और हम लोग के फिर से लेके जाएगा। बस वो एक सवालात के बताइए से, that's something that my father knows, it's not for you to know. काहे वो बताइए रहा कि that's for my father to know, that's not for you to know, because हम लोग के हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हम लोग के हर वक्त अपने आप के तैयार रखना चाहिए कि अगर कल परमेश्वर हम लोग के पास आए जी, तो हम लोग उसके साथ जा सकता है। अगर हम लोग ऐसे अपन घर के बारे में देखता है, तो हम लोग अपन घर हर वक्त साफ सुथरा रखता है। जैसे हम लोग बहुत से समय एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग अपन घर खाली वो टाइम नहीं सफा करता जब पौना होए, हम लोग अपन घर हर वक्त सफा रखता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड हाइजीन, राइट। तो वही रकम हम लोग अपने आप के भी खाली वो वक्त तैयार नहीं रखे जब हम लोग परमेश्वर से मिले जाता है। खाली वो वक्त हम लोग अपने आप के सफा नहीं रखे जब शनिचर रहे, अतवार रहे,
हम लोग खाली अपने आप के वो वक्त नहीं सफा रखे जब ईस्टर के समय रहे, क्रिसमस के सीजन रहे, पेंटिकॉस्टल डे रहे. वी नीड टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन ऑल द टाइम. तो यहाँ पर जन रिप्लाई दिस जीसस कि दैट्स नॉट फॉर यू टू नो, यू जस्ट कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम. तो अगर हम लोग यहाँ पर देखता है फिर 40 डेज जब वो लोग के सिखाई, 40 डेज सिखाई के बाद जब उसके समय आई, परमेश्वर के उठाने का समय आई, तब वो बताइस बोले जब हम जाएगा हम तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेज के जाएगा. आई विल नॉट लीव यू अलोन. हम लोग के काहे वो अकेला नहीं छोड़ के गए, बिकॉज ही नोज कि एज सून एज हम लोग के अकेला छोड़ी, जैसे हम लोग फेस दिखता है एडम और ईव के बारे में, जो टाइम परमेश्वर उससे उन लोग से हर वक्त आके उन लोग से मेल मिलाप करत रहा एडम और ईव से. लेकिन जब वो लोग अकेले में रहा तो जब सैतान आके वो लोग के अटेम्प्ट करी, उन लोग के बताइस बोले कि फल तुम्हें भले बताई से नहीं खाओ, तुम उसके खाए लो. तो वहाँ पर हम लोग देखता है कि वो लोग दे फेल्ड, वो लोग बहकावा में आए गए. और वही चीज़ हम लोग के फिर जो टाइम 8th पे ऐसा we saw that so many people they were failing. और जीसस के आए से पहले वर्ल्ड was full of sin, वो लोग पाप में डूबा रहा. तो जब पाप से छुटकारा देने के लिए जब जीसस आइज अपने आप के बलिदान करे, when he went up he knew कि हम लोग अपन बल पे, अपन ताकत पे हम लोग शैतान के नहीं सकता हराए. हम लोग फिर से वही मुसीबत, वही दुख में, वही पाप में फिर से जाके डूब जाएगा. जिससे हम लोग एक गीत अभी गाया, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन होगा परमेश्वर के आत्मा से. तो वही रकम हम लोग के लाइफ में when Jesus went up he said I will send you a helper. और अगर हम लोग Acts chapter 1 verse 8 में देखता है, and this is the most important verse for today, कि यहाँ पर बता हुए बोले कि when the जब हम लोग के पास परमेश्वर के आत्मा आई, तब हम लोग सकता है उसके लिए जाके काम करें, तब हम लोग सकता है उसके लिए जाके कार्य करें. बिकॉज तब हम लोग, जब हम लोग परमेश्वर के आत्मा से जाता है, तब हम लोग के हार नहीं महसूस हुई. जब हम लोग अपन आत्मा से जाएगा then we will fail basically. और जीसस जाए से पहले स्टिल बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 में बतावे बोले कि हम जब चल देगा तुम लोग कुछ करना नहीं, जेरूसलम छोड़ के जाना नहीं. because there was a 10-day gap between when जब जीसस उठा लिया गया था और जब पवित्र आत्मा ऐसा, there was a gap of 10 days in the middle. तब बताइस बोले जबले पवित्र आत्मा नहीं आई तबले तुम कहीं जाना नहीं. तुम लोग यहीं जेरूसलम में रहना और इंतजार करना पवित्र आत्मा के. वेट अपॉन द होली स्पिरिट. काय वो लोग के बताइस रहा वेट करना, फिर से वही चीज कि वो लोग अपन आत्मा से नहीं सकतरा करे. They needed guidance, they needed a helper, they needed somebody to convict them, to convince them when they are right and wrong. वही रकम आज हम लोग के लाइफ भी है. अगर हम लोग आज परमेश्वर के लिए जो चीज भी करता है, जहाँ पर भी है, अगर हम लोग अपन आप के पवित्र आत्मा से नहीं भरेगा, हम लोग जैसे अभी हम सकता है यहाँ खड़ा हो के प्रीच करे, लेकिन अगर हमारी जिंदगी जो है पवित्र आत्मा से अगर अलाइन नहीं रही तो कोई फ़ायदा की नहीं है. हम सकता है या कितना सेमन आके प्रीच कर दे सकता, गूगल पे जाके सर्च कर दे. एनीबॉडी कैन प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, एनीबॉडी कैन कम एंड सिंग a few songs in front, but ujon songs lo na, it becomes a worship when your spirit is aligned with the spirit of God. जब हम आके यहाँ पर ऐसे प्रीच करता है, लाइक जब कोई प्रीचिंग करे है, it becomes उसके जबले उसके जिंदगी पवित्र आत्मा से नहीं जुड़ा रही, he is still living a defeated life. चाहे हम लोग परमेश्वर के लिए कुछ छोटा करता है, कुछ बड़ा करता है,
चाहे हम लोग पास्ता है, हेल्पा है, इनकराजा है, जो भी गिफ्ट हम लोग के परमेश्वर दी से हम लोग के लाइफ में, अगर हम लोग अपन आत्मा से करता है तो इट्स ऑल वेन, कोई फायदा के नहीं है। हम लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट्स नॉट हाउ बिग ऑफ अ गिफ्ट वी हैव रिसीव फ्रॉम गॉड, बिकॉज जो परमेश्वर हम लोग के गिफ्ट दी से, ही गेव अस ऑल अ डिफरेंट गिफ्ट। इट डजंट मीन दैट जब हम लोग हेवन में जाएगा, pastors will basically be first in the line, and then basically prophets should be second or something like that. There's no line like that. There's no rule. But the only thing that's important is हम लोग के relationship परमेश्वर से, कि हम लोग परमेश्वर के अपन लाइफ में और परमेश्वर के हम लोग कहाँ पर रखा है। हम लोग कभी कभी हम लोग के बाइबल भी बतावे कि कभी कभी हम लोग इसे जुन्ने मुझ समय आई जब हम लोग परमेश्वर के आगे जाएगा, वी विल बी शॉक टू सी कि कौन परमेश्वर के पास जाए है, कौन परमेश्वर के पास नहीं जाए। जिसे हम लोग एक पैराबल भी परमेश्वर हम लोग के बताए, बोले कि दुई जन गई प्रेयर करे, तो एक बोले जोर जोर से चिल्ला के बताए, बोले धन्य परमेश्वर की, बोले हम इसके रकम नहीं है, हम रोज आता है, हर सर्विस में आता है, हर वक्त प्रार्थना करता है, हम ई करता है, हम वो करता है। और एक कौन आए के बताए, बोले परमेश्वर, बोले हम पापी मनुष्य में क्षमा कर दो। तो परमेश्वर बताइस बोले कि जो नाय के क्षमा करिस, अपने आप के हम्बल करिस, छोटा बनाइस, बिकॉज इसके लाइफ परमेश्वर से राइट है। बोले शुआ इनफ ई हेवन जाई ना कि एकौना। तो हम लोग चाहे परमेश्वर के लिए हम लोग चाहे कितना काम कर लेता, लेकिन इजन आत्मा से जबले हम लोग परमेश्वर के नहीं भरता है, जबले हम लोग परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं चलता है, देन इट्स ऑल वेन। तबे से ही यहाँ पर बताओ बोले कि वेट फॉर द होली स्पिरिट, तुम जाके ऊपर रह के इंतजार करना। और अगर हम लोग चैप्टर 2 में जाता है, चैप्टर 2 वर्स 1 में यहाँ पर फिर बताए के यहाँ बतावे है कि बोले जब पवित्र आत्मा आइस वहाँ पर, बोले ये लोग एक तन एक मन में अपर रूम में इकट्ठा रहा। ये लोग के एक इंस्ट्रक्शन दे के गई रहा, जीसस बताइस रहा कि बोले तुम लोग जाए के अपर रूम में वहाँ पर वेट करना पवित्र आत्मा के। और उस समय पर जब पवित्र आत्मा उतरी, वो अपर रूम में जितना जन रहा, हम लोग देखता है वहाँ पर डिसाइपल्स लोन रहा, और मेरी मैगडलीन लोन रहा, और से फॉलोअर्स लोन भी रहा। जोन हुआ पर इकट्ठा बैस रहा, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, बिकॉज सबको उसके इंतजार करत रहा, सबको उसके पुकारत रहा, सबको वर्शिप करत रहा वहाँ पर। आज सवाल ये है कि हम लोग वही रकम पवित्र आत्मा के इंतजार करता है, वही रकम हम लोग उसके वर्शिप करता है, वही रकम हम लोग मानता है कि आए के उतरे। जो अपारू में उस समय नहीं में हुआ पर नहीं रहा, उन लोग के ऊपर नहीं है इस आत्मा खाली वही लोग के ऊपर आई जो उस वक्त उस आत्मा के इंतजार करत रहा अपारू में। अगर 11 डिसाइपल में से कोई डिसाइपल वो अपर रूम में नहीं रहता, शायद तो लोग जाके मे बी मछली मारा, बिकॉज लॉट ऑफ देम वर फिशरमैन। अगर शायद तो लोग जाके मछली मारता, या तो कहीं अपन घर बनाता रहता, या तो कोई और चीज़ करा रहता, तो उन लोग के ऊपर वो आत्मा नहीं आता, बिकॉज आत्मा जोन खाली इंतजार करता, जोन वेट करता रहा आत्मा के, वही लोग के ऊपर आई। तो आज सवालात ये हम लोग अपने आप से सकता है पूछे, हम कोई के लिए नहीं सकता पूछे कि क्या आज हम लोग इंतज़ार करता है उस आत्मा के कि हम ऊपर आके गिरे। क्या आज हम लोग महसूस करता है कि वो आत्मा हम लोग के ऊपर है, कि हम लोग खाली अपन ऊपर मन से अपन उन शक्ति से जाके परमेश्वर के काम करता है, ताकि कोई देखे तो बोले हाँ ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, बड़ा भारी भारी काम करे। आज हम लोग कौन मोटिव से परमेश्वर के काम करता है? इज इट कि हम लोग जाता है परमेश्वर के लिए काम करे, कि कोई हम लोग के लिए ताली बजाए कि हाँ ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम करे, कि आज हम लोग परमेश्वर के लिए काम करता है
बिकॉज हम लोग परमेश्वर से प्यार करता है. जैसे यहाँ पर हम लोग देखता है डिसाइपल्स लोग, the only reason why they wanted to continue doing the work of God was because they had a good they had a relationship with God. They loved God. हम लोग देखता है अगर इस जो डिसाइपल्स लोग के अगर हम लोग जाके वो लोग के मौत के बारे में पढ़ता है, how each of these disciples they died, none of them really had a easy death. Most of them they had very painful death. कोई के सर काट दिया गया रहा, कोई के ऊपर लटकाए के आरी से बीच में से आधा करके काटा गया था. तो they had a very painful death, all these disciples. क्या आज परमेश्वर के लिए हम लोग उस पीड़ा सह सकता है जो उस समय इस डिसाइपल्स लोग सही रहा? हम लोग कभी कभी सोचता है कि डिसाइपल्स लोग बिकॉज वो लोग परमेश्वर के साथ साथ रहा और परमेश्वर के आत्मा उन लोग के ऊपर रहा, everything was milk and honey for them. No, they went through a lot. They suffered a lot for Christ. They really took up his cross and they followed Christ. क्या आज हम लोग जब परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता है, परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहता है, बिफोर हम लोग परमेश्वर के आत्मा से भरे के लिए आर वी रेडी टू सफर लाइक द डिसाइपल्स डिड? क्या जोन जोन दुख मुसीबत से वो लोग चल के गए रहा, क्या आज हम लोग उस पर चल सकता है? अगर आज हम लोग के आंसर यस है तब हम लोग ऊपर वो आत्मा से भरे सकता है. अगर हम लोग मनता है परमेश्वर के आत्मा अपन ऊपर ताकि everything becomes milk and honey for us, then we need to change our mindset. Because disciples when they received the power, it wasn't जन power ऐसा लोग के जन शक्ति ऐसा, that power was not to give them a life of milk and honey. उन लोग के जन शक्ति है इस उस समय हम लोग अगर चैप्टर 2 में और नीचे पढ़ते जाता है तो बोले उन लोग के जितना वहाँ पर जन प्रेजेंट रहा सबके ऊपर उला ताकत है इस सामर्थ्य ऐसा शक्ति है इस उस सामर्थ्य और उस शक्ति से वो लोग उस शक्ति वैसा नहीं रहा कि वो लोग जाके $1 million $2 million के घर खरीदे सके. That power was something else. It was not to give them an easy life. What it was कि वो लोग परमेश्वर उस ताकत से उस शक्ति से परमेश्वर के जो क्रूस से उठाए के उसके साथ साथ चले सके ताकि जो किंगडम ऑफ हेवन के बारे में परमेश्वर उन लोग के सिखाई रहा, उन लोग किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश कर सके, उन लोग के साथ में एक इटर्नल लाइफ बिता सके. तो आज हम लोग जब हम लोग पवित्र आत्मा के अपने लाइफ में इनवाइट करता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द राइट मोटिव. जब हम लोग उसके अपन लाइफ में इनवाइट करता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो दैट द पावर दैट ही ब्रिंग्स, द मेन रीजन व्हाई वी वांट दैट पावर इज ताकि हम लोग परमेश्वर के जो कार्य है हम लोग उसके आगे बढ़ा सके, उसके जो क्रूस है उसके उठाए के हम लोग चले सके. हम लोग जैसे पीटा के लाइफ में देखता है, पीटा उससे पहले जो जीसस के यात्रा एक और एग्जाम्पल है, जो लोग ऊपर गए माउंटेन पे प्रेयर करे, जब जीसस गए आगे प्रेयर करे, पीटा और आधा डिसाइपल जो लोग के संगे रहा वो लोग सोई गए, वो लोग जाके रात भर नहीं सके जग के प्रार्थना करे बिकॉज उन लोग के पास शक्ति नहीं रहा, टाइम सामर्थ्य नहीं रहा. लेकिन यहाँ वेस 2 में जब हम लोग देखता है तो बताइए बोला जो पीटा के ऊपर पावा आइस एक फ्लेम के रूप में, एक हवा के झोंका के तरह जब उन लोग के ऊपर आइस एक आत्मा, तब पीटा उठ के ही बोल्डली स्पोक. जब वो प्रचार करे के शुरू करीस ही स्पोक विद अथॉरिटी, एक बोल्डनेस आई गेस उसके ऊपर. He was a changed Peter from there. फिर उसके आगे जब हम लोग देखते जाता है Peter started preaching, he started healing. जोन ची परमेश्वर करत रहा उस सब सामर्थ पीटा के पास आ गई, उस शक्ति पीटा के पास आ गई because Jesus बताइए when I go I will give you authority, I will give you power and you will do
more than what I was doing. और उस सामर्थ हम लोग देखा कि पीटा के ऊपर आई, और जब पीटा प्रचार करे के शुरू करिस, one of his first preaching, 3,000 people got saved. Because काहे? Because पीटा के पास उस शक्ति रा सामर्थ्य था. अगर पीटा अपन ताकत से खड़ा हुए के वहाँ पर बीच में प्रचार करता तो शायद रिजल्ट सेम नहीं रहता. लेकिन जब वो खड़ा हुए के प्रचार करे, he had the power of God with him. तो अगर आज हम लोग परमेश्वर के रास्ता पे चले सकता है, if we want to be part of the kingdom of heaven, जो जीसस बताता रहा, तो we need to have the spirit of God, we need to have the power of God. हम लोग देखता है वहाँ पर जो अपर रूम में वहाँ पर हर एक तरह के लोग रहा, वहाँ पर डिसाइपल्स रहा, वहाँ पर कुछ they were men, they were women, वैरायटी ऑफ पीपल रहा. लेकिन जब टाइम आत्मा उतरीस, उसमें से पिक नहीं करीस कि हम खाली अपर रूम में खाली इन लोग के शक्ति देगा, इन लोग के सामर्थ्य देगा, इन लोग के नहीं देगा, खाली लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड नहीं जाएगा, खाली मेन के ऊपर जाएगा, वुमेन के ऊपर नहीं जाएगा, या वुमेन के ऊपर जाएगा, मेन के ऊपर नहीं जाएगा. ही गेव ईच एंड एवरी वन वही सेम शक्ति सामर्थ्य सबके ऊपर आई. और वहाँ पर जितना लोग रहा, बाइबल बतावे बोले सबको अन्य अन्य भाषा में बात करे के शुरू करे, बिकॉज सबको रिसीव करे. तो आज हम लोग चाहे यहाँ पर छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे कहीं से आया है, चाहे डिफरेंट है हम लोग, लेकिन अगर आज हम लोग पवित्र आत्मा के इंतज़ार में है, अगर हम लोग के ऊपर अभी तक नहीं आई से और हम लोग अभी तक उसके पुकारता है, इंतज़ार करता है, वर्शिप करता है, प्रेस करता है, पुकारता है, तो वो ज़रूर से हम लोग के ऊपर उतरेगा, जैसे यहाँ पर उस समय उन लोगों के ऊपर आई रहा. और अगर अभी तक हम लोग पवित्र आत्मा के महसूस नहीं कराए, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसके आत्मा अपने अपन ऊपर पुकारे. बिकॉज जिसके पास उस समय आत्मा नहीं, ऐसा जो रूम से बाहर रहा, they didn't know what was going on, they didn't understand anything. कुछ लोग तो वहाँ पर बोले जनाई लोग बोले रात भर नशा करी से, बोले अभी तबे से लोग डिफरेंट लैंग्वेज में बात करे हैं, और तबे से लोग शोर शराबा करे. तो पीटा उठ के बताए, बोले नहीं, बोले परमेश्वर के शक्ति हम लोग इन लोगों के ऊपर आई से, तबे से बोले ये लोग सके हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषा में बात करे और वर्शिप करे. और पीटा वही शक्ति से लेके सबके प्रचार करत रहा. तो जबले हम लोग उस आत्मा के महसूस नहीं करेगा, जितना भारे इंसान लोग रहा, they were all confused, they didn't know what was going on. वही रकम हम लोग के लाइफ भी रही, we will be confused. हम लोग खाली जन फिजिकल सोच से ट्राई करेंगे, बट हम लोग जो किंगडम के असली पार्ट है, जो एकताई, जैसे यहाँ पर वेस्ट 2 में फर्स्ट फ्यू चैप्टर 2 फर्स्ट फ्यू वेसेस में बताया, बोले उस समय जो एकताई में रहा, हम लोग वो एकताई में नहीं रहता है, बिकॉज वी आर गोइंग बाय आवर फिजिकल बॉडी, बट जो एक्चुअल किंगडम ऑफ हेवन है, वी नीड टू गो बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट. हम लोग उसके ताकत से हम लोग जब किंगडम ऑफ हेवन के लिए कुछ करना चाहता है, तो हम लोग के पर जो होली स्पिरिट है, उसके अपन लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग के सही तरह से सके गाइड करे, सही तरह से सके बताए कि कब और कौन सी करो. जैसे हम लोग पॉल के देखता है, तो उसके हर वक्त परमेश्वर बताता रहा कब कहाँ जाओ, और उसके वार्निंग देता रहा कि तुम अगर यहाँ जाएगा तो ऐसे हुई, यहाँ जाएगा तो ऐसे हुई. लेकिन अगर उसे अपन शक्ति से जाता तो उस सब वार्निंग्स और जो सही रास्ता से वो नहीं चल के जा पाता. तो that is why we need to have Holy Spirit in our life, and that is why we need to listen to the Holy Spirit what He is requiring us to do. हम लोग के बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के आत्मा से चले. तो हम यही वचन छोड़ेगा हम लोग के बीच में और डेट के देगा.
हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और जब हम स्क्रिप्चर्स में देखते हैं तो हम लोग को इसमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था वो पूरा किया हमारे जीवन में। और things that he said you will be able to do, you will be able to achieve. And these disciples, जब हम लोग पीटर के देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, when he was arrested and he was going through that sort of trial, and he was asked that question, उससे बोला गया कि ना ये उसके साथ में रहा, and he denied him 3 times. But Jesus already knew that he would be denying him. This same Peter, जब Jesus नहीं था, he said, I'm going back to fishing. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया है और उसके आज्ञा के पालन किया है पतरस और उसके साथ में वो 120 people जो उस अपर रूम में जो इंतज़ार करते थे पवित्र आत्मा के, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था जेरूशलम छोड़कर कहीं नहीं जाना और वहीं पर रहना और इंतज़ार करना। तो उनको सिर्फ वहाँ पर जाकर एक रूम में बैठ के सिर्फ बैठ के इंतज़ार नहीं करना था। They wanted to be in prayer. और बाइबल कहता है they were in one accord, एक ताई में लोग प्रार्थना में लगे रहे। And when the Holy Spirit came, and it was like a mighty rushing wind, right? And if you read in chapter 2, and when the day of Pentecost was now come, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven sounds as of rushing of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting, right? शायद वो लोग फ्लोर पर बैठा था, I don't know. I'm just assuming because this is something that we used to do. We sit on the floor in a circle and then we'd spend time in prayer and worshiping God. And most probably they were doing that floor पर बैठा था या chairs वगैरह था, लोग बैठा था in a circular form में or just one behind the other or whatever. और ये लोग परमेश्वर की जय जयकार करते थे और प्रार्थना में लगे थे. They were in contact with the Lord. परमेश्वर से connected थे. And then the Holy Spirit came. Right? So few things हम लोग यहाँ पर देखते हैं. First thing है कि एकताई. Right? We are just a few, just a handful of people. But if we are in one accord, एकताई में रहेगा, हम लोग काम करेगा, we can achieve a lot. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ में वो मिलजुल कर काम करने वाला है. Right? He's not जैसे भी 120 people था, but disciples were just only 11 left there, right? एक तो चला गया था, and there were some women जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, but there were other people, 120 people वहाँ पर थे, and they all were filled with the Holy Spirit, right? ये सब प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स लोग थे, लेकिन जो चेले लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह जिनको चुना था वो काम आगे बढ़ाने के लिए, they were there, but there were others, and they were in one accord. We're not talking about Honda Accord or anything like that. We're talking about in unity. एकताई में ये लोग थे वहाँ पर, and the Holy Spirit came, and they began to speak with other tongues. Verse 4 में कहता, as the Spirit gave them the utterance. एक के चाइनीज भाषा में बात करने के, एक के Japanese या एक के maybe Fijian or whatever, right? or Tongan भाषा में whatever. क्योंकि वहाँ पर स्क्रिप्चर बताता कि there were people from all over the place. ये celebration time था, and there were people from all over the place. और ये लोग आया वहाँ पर, and they heard, right? And verse 7, and they were all amazed and marveled, saying, behold, are not these Galileans that speaking Galileans? And we hear every man in our own language where we were born, right? And then he gives some of the places, right? But the thing is, जब Acts chapter 1 verse 8 में हम लोग देखते हैं, he says, but you will receive power after the Holy Spirit is come upon you, and you will be witness. ये power जैसे इसके ने बताया कि it was something to do with supernatural,
right? ये सिक्स पैक बनाने के लिए, बिग मसल्स बनाने के लिए ये पावर नहीं है. It's not talking about physical power. It was talking about spiritual power that will be manifested in physical form में, right? जब हम लोग पीटा के देखते हैं, he was one of them. He was a bold one, but when things happened, he was more like this. बोले चूहा बन गए, अपन बिल में हल गए, right? That's how he was. But when the Holy Spirit came upon him, he is the first one. He stood up and he preached the gospel there. He preached about Christ and he told them, right? It was spoken by prophet Joel, Joel chapter 2 में. उसमें बताता है कि in the last days God will pour out His Spirit upon all flesh, not on some of them, but He's going to pour His Spirit upon everyone, right? And Peter वही बात हम लोग के समझाता है आगे scriptures में कि it is for every person, every family के लिए है, right? It's not only for the pastors or the church leaders or anything like that. It is for every person. In order to receive that, you will have to do a little bit of sacrifice. And what is that sacrifice? Spending time in the presence of God, reading the Word of God, and seeking Him, right? तभी परमेश्वर तुम्हें अपने पवित्र आत्मा से भरेगा. Otherwise, you will be nothing basically. You will not receive that, right? Because यहाँ पर हम देखते हैं 10 days ये लोग वहीं पर थे और प्रार्थना में लगे थे, right? On the 40th day प्रभु यीशु मसीह माउंट ओलिवेट से वहाँ आकाश में उठा लिया गया. And then they came to Jerusalem और वहाँ पर इंतजार किया. They waited upon the Lord. They waited for the Holy Spirit to come. वो लोग जानते थे जैसे प्रभु यीशु मसीह जो वादा किया था वो पूरा होगा और उसी वादा के वो इंतजार करते थे. और वो एक और वादा किया है कि वो लौट कर आएगा. वो लौट कर आएगा. क्या हम उसको इंतजार करते हैं? Are we ready to receive Him? The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा हमारे साथ है. Amen. Hallelujah. कि हम सब खड़े हो जाएं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, God Almighty. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, I pray for your Holy Spirit to minister to your children, O God Almighty, in a very special way, O God Almighty, this afternoon. As we come before you, Lord, before your throne of grace, O God Almighty, I pray for each and every person that is here, Lord. I pray that you bless them, Lord. Anoint them, O God Almighty. Fill them with your presence, Lord, as they seek you, Lord, as they open their hearts unto you, Lord, as we sing this song, as we worship you, Lord God Almighty. Help us, Lord. Bless each and every one of us, Lord, and bless those that are watching online, God Almighty. As they open their hearts, Lord, I pray that you bless them, O God Almighty, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name I pray.
बरसा चाहती है। तेरे गुनाह चाहे हो की मर्जी, पर्वत के मानद धो देगा वो, पानी और उसे देगा जन्म, चरणों से जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो की मर्जी, पर्वत के मानद धो देगा वो, पानी और उसे देगा जन्म, चरणों से जिंदगी दे देगा वो। प्रेम की बरखत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है। कोड़े दिखाए तेरे लिए वो सूली चढ़ा, कुछ लग गया वो तेरे लिए, तेरे शिफा को ये सब सहा। कोड़े दिखाए तेरे लिए वो सूली चढ़ा, कुछ लग गया वो तेरे लिए, तेरे शिफा को ये सब सहा। प्रेम की बरखत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। उस पर नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीह से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। उस पर नजर कर ले ले शिफा, अपने मसीह से ले ले शिफा, उसकी सलीब से ले ले शिफा, उसके लहू से ले ले शिफा। प्रेम की बरखत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती 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 है। हालेलुया। रूह की बारिश बरसा चाहती है। प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन में रहना चाहता है। हालेलुया।
Hallelujah. We worship you, God Almighty. तेरे ही आगे मैं हाथ उठाऊं प्रभु, तेरे ही सामने हम अपने घुटने टिकाएंगे प्रभु, क्योंकि तू ही महान परमेश्वर है. Father, we just thank you, God Almighty, at this moment. Once again, Lord, we thank you for your Holy Spirit, Lord, that is here, Lord, that is ministering to your children this afternoon, Lord, as they have opened their hearts unto you, Lord. Thank you, Lord, that they will not go empty-handed, Lord, but be filled with your presence, of God Almighty, with your Holy Spirit, Lord Jesus. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. God bless you all. हमारा सभा यही खत्म हुआ और दूसरा सभा 7 p.m. रहेगा on Radio Khushi and आशा के पेज पर. So you can join us there once again this evening. Till then, the Lord be with you. Amen.